Yes, we thank God for the word that we heard, परमेश्वर की स्तुति हो जो वचन हमने सुना उसके लिए, especially that word which Brother George Bengal read from Exodus chapter 12, saying about uh, that lamb which they had to take on the 10th day and then sacrifice it on the 14th day. और वो जो बात ब्रदर जॉर्ज ने कहा, जो निर्गमन 12 के 12 अध्याय से जो वो मेमने के बारे में जो हम वो उनको लेना पड़ता था और उसे अपने साथ 3 दिन के लिए रखना पड़ता था. That was something which was fresh to me. वो एक ऐसी नई बात जैसे मुझे लगा. And just to think that a perfect lamb without defect, uh, young lamb kept in the home for 3 days would have been such a pleasure for the family. हम सोच सकते हैं कि ऐसा एक छोटा सा मेमना जो बिना कलंक का है और उसे हम लेकर अगर घर में रखेंगे तो कितना प्यारा लगेगा वो. So I think I'll just do without the video. I feel a little free. Okay. So. Uh, uh, So then when it had to be sacrificed, then the value of that lamb is felt. तब जब उसका बलि चढ़ाया जाना होता तो हम उसका मूल्य जान सकते हैं. Then everybody will feel the pain of seeing that young lamb which they enjoyed being killed. तब लोगों को वो जो उससे अलग होने का जो दर्द महसूस होगा, इसी कारण ये किया गया. So then they will feel that remorse for the remorse for their sin. और वैसे ही उनको अपने पापों के लिए भी मन में पश्चाताप होगा. So that is the thing that God wants us to realize in our life, that when we commit sin, that a great sacrifice has been paid for us. यही प्रभु भी हमारे जीवन में चाहते हैं कि हमें ये महसूस हो कि जब हम पाप करते हैं तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बलि चढ़ाया गया है. Otherwise, we can take it so lightly that okay, I've sinned, so now but there is I can just confess and I can receive the forgiveness. So we can treat it very casually. नहीं तो हम इसे बहुत बड़ी लापरवाही से सोचेंगे कि मैंने पाप किया है और हाँ मैं अभी उसे मान लेता हूँ तो मेरा पाप मुझे माफ़ किया जाएगा. Suppose, for example, we have done we have spoken very roughly to maybe our child or to our wife or to any person. We have done that, and we have spoken very roughly, and we have spoken some things which is not so pleasant. अगर हमने अपने परिवार में अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कुछ कठोरता से बर्ताव किया है, कुछ बोला है, just for an example, and if we feel okay, I have failed in this time, I have fallen in this time, okay, but I can ask God to forgive me. और हमें लगता है कि हाँ मैं गिर गया हूँ पाप में, लेकिन मैं परमेश्वर से माफ़ी मांगूंगा. That is one way of taking it. हम इस रीति से उसे ले सकते हैं. Yeah, that happens, and I've also, it has happened to me. I will ask God to forgive me. ये होता है सबके साथ, ऐसे मेरे साथ भी हुआ है और मैं प्रभु से माफ़ी मांग लूँगा. But there's another way of taking it. और एक अलग रीति से भी हम उसे देख सकते हैं. That when we realize, as yesterday we heard, that sin is utterly sinful. कि हमें ऐसा महसूस हो कि पाप
बहुत ही गंभीर गलती है। So then we say, Lord, what I've done is totally bad, तब मुझे महसूस होगा कि जो मैंने किया है वो एकदम गलत है and Lord, I don't want to do this ever again in my life. और ये नहीं चाहता कि मैं उसको फिर से दोहराऊं। I don't say that, yeah, that my weakness will be there, it may happen. I don't say that way. I say, Lord, from my side, I don't want this at all anymore in my life. और मैं कहूँगा कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि ये गलती मेरे से फिर से ना हो। I don't know, because of my weakness, it may happen. But from my side, when I don't want it again in my life, then I see the value of Christ's sacrifice. जब मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे ये करना नहीं चाहिए, तब मैं परमेश्वर ने जो बलि दिया है अपने बेटे का, उसका कीमत मैं जान पाऊंगा। Otherwise, I think that Jesus Christ's sacrifices, I don't really value his sacrifice. I think that, okay, I can avail of it. I can avail the benefit of it. नहीं तो मुझे ऐसे लगेगा कि हाँ, परमेश्वर ने अपना पुत्र दिया है मेरे पाप की माफ़ी के लिए, इसलिए मैं इसका प्रयोग करूँगा। So I'm always encouraged and challenged by David in First Chronicles 21. और मैं जब भी दाऊद के बारे में पढ़ता हूँ, पहला इतिहास Yeah, First Chronicles 21. 21 अध्याय। So David had sinned by making a census. तो लोगों की गिनती की थी दाऊद ने और उसने ऐसे ही पाप किया था। And God punished by killing so many people. और परमेश्वर ने दंड दिया और बहुत लोग मारे गए। Then David said, Lord, I have sinned, but let the sheep, what they have done. So he was crying out to the Lord. तब दाऊद ने प्रभु को पुकारा और कहा, प्रभु इन भेड़ों को आप माफ कर दो, मैंने ये गलती की है। So he wanted to make an offer, a sacrifice. तो वो एक बलि चढ़ाना चाहता था। And he looked, he wanted a place for the sacrifice. और वो चाहता था एक जगह के लिए जो जहाँ वो बलि चढ़ाया जाए। And there was a person by the name Ornan who had a place. और एक आदमी जिसका नाम था ऑर्नन, So उसके पास वो जगह थी। So David asked Ornan if he can give me that place. तो दाऊद ने ऑर्नन से कहा कि मुझे वो जगह खरीदना है तुमसे। And he wanted to offer that sacrifice so that the plague which God sent would be stopped. कि वो जो महामारी है वो बंद हो जाए, इसके लिए दाऊद वो बलि वहाँ चढ़ाना चाहता था। So Ornan gave his place and told David, yes, you can take it. And in verse 23, First Chronicles 23, First Chronicles 21, 22 and 23. पहला इतिहास 21वां अध्याय और उसका read 23, verse 23. 23वां वचन। ऑर्नान ने दाऊद से कहा, इसे ले लो और मेरे प्रभु राजा को जो कुछ भाई वही करे। सुन, मैं तुझे होम बलि के लिए बैल और ईंधन के लिए दामने के हथियार और अन्न बलि के लिए गेहूं, ये सब मैं देता हूँ। So Ornan was giving all these things in the place and the material for the sacrifice. तो ऑर्नन वो जगह और जो भी चीज़ें आवश्यक है वो बलि चढ़ाने के लिए वो सब मुफ्त में देने के लिए तैयार था। Yeah, and he was willing, and Ornan was saying, because he respected the king, and said, you take everything, take it free, you don't have to pay anything, you just do the sacrifice to God. ऑर्नन दाऊद राजा का आदर करता था, इसलिए वो
मुफ्त में उन्हें सब कुछ देने के लिए तैयार था। And so David had to offer a sacrifice so that the plague would be stopped. दाऊद एक बलि चढ़ाने जा रहा था कि वो महामारी रुक जाए। So he could have taken that place and all the material and sacrificed, and that would be the end. He would have done the sacrifice which God wanted him to. और अगर दाऊद वो बलि उधर चढ़ा देता तो वो महामारी रुक जाता। But the next verse 24 is the thing which is the most important. लेकिन 24वां वचन में हम एक बहुत महत्वपूर्ण बात देखते हैं। This verse is the one which defines our life. ये हमारे जीवन को स्पष्ट करता है। Okay, we'll read 24. राजा दाऊद ने ओरनान से कहा, नहीं, मैं अवश्य इसका पूरा दाम भी देकर इसे मोल लूँगा। जो तेरा है उसे मैं यहोवा के लिए नहीं लूँगा और ना सेंत मेंत का होम बलि चढ़ाऊँगा। So David said, no, I will pay the full price of this. I will not offer to God that which doesn't cost me anything. मैं दाऊद कहता है कि मैं मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा प्रभु को। जो मुझे कीमत चुकाना है मैं उसे चुकाकर ही परमेश्वर को बलि चढ़ाऊंगा। And in verse 26 it says, and David called unto the Lord, and the Lord answered him with fire. और हम 26वां वचन में देखते हैं कि दाऊद ने वो बलि चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे आग से उत्तर दिया। So brothers and sisters, even for us, the fire will come only when it's a living sacrifice on our part. जब वो जीवित बलि हम चढ़ाएंगे तभी परमेश्वर का आग हमारे बलि के ऊपर उतरेगा। When something costs us everything, when something costs us too much, that is a sacrifice which God has given us for our behalf. That is Jesus. Same way in our lives, we must offer to the Lord only that which costs us something, not something which is free. ऐसे ही हमें भी जब हम बलि चढ़ाते हैं प्रभु परमेश्वर को तो हमें भी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। Amen. Jesus said that he who saves his life will lose it. He who loses his life for my sake will find it. और हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने एक बार ऐसे कहा कि जो अपना प्राण बचाना चाहेगा वह अपना प्राण खोएगा और जो अपना प्राण मेरे लिए खोएगा वह उसे पाएगा। We heard about from George Wangel the sacrifice that we have to make. और हमने भाई जॉर्ज जी से सुना कि वह बलिदान जो परमेश्वर हमसे चाहते हैं चढ़ाने के लिए। As long as I keep my precious things with me, I'm going to lose it. और तब तक जब तक मैं अपनी सारी कीमती चीजों को मैं अपने पास रखूंगा मैं उन बातों को खो दूंगा। The best thing I can do is to offer it to the Lord. The Bible says when we offer our self-life, then only we really get that eternal life. और सबसे उत्तम बात हम यही कर सकते हैं कि हमारी उन कीमती बातों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे और यही हम अपने इस व्यक्तिगत जीवन के साथ में कर सकते हैं कि हम परमेश्वर को अर्पित करें। I know in my own life, in my past days, things I tried to keep with myself, I was actually losing it. और मुझे मेरे पुराने बीते हुए समय में भी वो समय याद आता है जहाँ पर मैं बातों को अपने पास रखना चाहता था। I was losing it. Such things I was losing it. रहा था। So Abraham, we read about Abraham that he offered Isaac, but we heard that before offering, God stopped him. और हमने पढ़ा कि अब्राहम ने इसहाक को बलिदान चढ़ाया परमेश्वर के लिए और जब वह उस पर हाथ बढ़ाने वाला था परमेश्वर उससे रोक देते हैं। But
from that time onwards, Isaac was not his, it was the Lord's. और उसके बाद से हम देखते हैं कि इसहाक उस समय के बाद से अब्राहम के हृदय में नहीं बस गया था। In the same way, as we heard, I have to see in my heart, am I clinging on to something, and that I'm going to lose it. The best way to preserve it is to give it to Jesus. उसी रीति से मुझे मेरे हृदय में झांक कर देखना है और जांचना है कि कोई बात है, कोई वस्तु है जिसे मैं अपने पास कसकर पकड़ कर रखता हूँ, जिसे मैं खो दूंगा, और एक उत्तम बात मैं उसके साथ यही कर सकता हूँ कि उसे मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप दूं। This sacrifice has to be there every day. There's no use saying that 1 year ago I sacrificed everything to the Lord, but it may not be so today. और यह जो बलिदान है, यह वर्ष में एक बार का करने जैसा नहीं, परंतु यह हर रोज के हमारे जीवन में जो हम जीते हैं, यह हर रोज किया जाना चाहिए। 1 year back there may be fire in my life, but if today I'm preserving things, the fire is gone. और यदि एक वर्ष पहले यदि मैं देखूं तो हाँ, मेरे अंदर आग थी और मैं अपने पास कोई भी बातें पकड़ कर नहीं रखता, लेकिन यदि आज मैं उन बातों से जुड़ चुका हूं तो वह आग मेरे जीवन से जा चुकी है। God told Israelites through Malachi that you are sacrificing what is blind and what is lame. Such things you are sacrificing to the Lord. और हम मलाकी में देखते हैं कि मलाकी के द्वारा परमेश्वर इजरायलियों से कहता है कि तुम मेरे लिए ऐसा बलिदान चढ़ाते हो जो मेमना, अंधा है, जिसमें दोष पाया जाता है, लंगड़ा है। God is telling you, try to give it to the governor. Will he be pleased with you? अब परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि तुम इससे अपने सरकार के जो हाकिम है उनको, अपनी सत्ता के अधिकारियों को भेंट देने की कोशिश करो, क्या वो उसे ग्रहण करेंगे? And God is telling, I wish that somebody will close the doors of the temple so that such sacrifices will not be offered to me. अब परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि कोई मेरे इस भवन का, मेरे मंदिर का दरवाजा बंद कर दो ताकि ऐसा भेंट कोई मुझे चढ़ाने न पाए। What is the application of that today for me? और उससे मैं अपने जीवन पर कैसे लागू करूंगा? If I say that I sacrifice my eye to the Lord, my tongue to the Lord, but if I talk according to my own will, look where I like and speak what I like, then I'm actually doing what blind and the lame things I'm trying to offer to the Lord. और यदि मैं अपने विषय में कहूँ कि मैं अपनी आंखों को परमेश्वर को सौंपता हूँ, भेंट चढ़ाता हूँ, मेरे जुबान को, मैं बोली को मैं परमेश्वर को सौंपता हूँ, और फिर भी मैं अपनी इच्छा से मैं जहाँ देखना चाहूँ मैं देखता हूँ, जैसे भी मैं बात करना चाहूँ मैं करता हूँ, तो मैं परमेश्वर के लिए अंधा और लंगड़ा लूला दोष वाला बलिदान चढ़ा रहा हूँ। The true meaning of disciple is a student who has offered everything to the Lord. और चेला, वास्तव में एक सच्चा चेला वही होता है जिसने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए सौंप दिया है। We know that we are like a branch in a tree. और हम जैसे कि जानते हैं कि एक डाली जो पेड़ में जुड़ी होती है, And when the branch is properly connected, all the sap will flow to that branch and it'll bear fruit. और हम देखते हैं कि वह डाली जितनी अच्छे रीति से उस पेड़ से जुड़ी होती है, उसे वो सारा पोषण मिलता है, जिससे वो डाली हरी भरी रहती है और उसमें फल लगते हैं। We have many trees here. All on a sudden, we can see here some of the branches are dry and no leaves there, and after some time it just falls off. और हम देखते हैं कि कई सारे हमारे आसपास ऐसे भी पेड़ होते हैं जिनकी डालियां बहुत ही सूख जाती है, उनमें पत्ते तक नहीं होते, पूरी तरह से मुरझा जाते हैं और कुछ समय बाद वो डाली भी टूट जाती है। Other branches are fresh, but here is 1 or 2 branches which are dried up. और बाकी सारी डालियां हरी भरी रहती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक दो होती हैं जो बहुत ही सूख जाती है। That is that there are certain areas where I try to keep something to myself, and I preserve certain things for myself, and that is the reason for dryness. और वह सूखापन जो मेरे जीवन में, मेरे हृदय में होता है, वह इस कारण होता है कि कुछ बातों को मैं अपने अधिकार में रखता हूँ, अपने पास रखने की कोशिश करता हूँ, परमेश्वर को नहीं देता। Jesus said, you have to love the Lord above your father, mother, brother, sister, wife, children, and my own life, and even my possessions, and take up my cross and follow Jesus.
और यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, मेरे चेले बनना चाहते हैं, तो अपना माता पिता तुम्हें अपने माता पिता, अपने पत्नी से, अपने पति से, अपने बच्चों से, यहाँ तक कि तुम्हारे अधिकार में जो कुछ बातें हैं उन सभी से तुमको नफरत करनी होगी, और अपने आप के जीवन से नफरत करनी होगी। मेरा क्रूस उठाना होगा तुम्हें अपने जीवन में। That is when the sap, the Holy Spirit, flows freely into my Christian life. और यह वह स्थान है, यह वह समय जहाँ पर परमेश्वर की पवित्र आत्मा बहुत ही आसानी और सरल रीति से मेरे जीवन में बहने लगेंगी। But one thing I keep for myself, that flow stops. लेकिन एक बात को यदि मैं अपने पास, अपने वश में रखने की कोशिश करूंगा, तो वह जो पोषण है वह रुक जाएगा बहना। So may God help us that we can examine our own life and offer what is best to the Lord. और परमेश्वर हमारी सहायता करे, और जो कुछ हमारे अधिकार में परमेश्वर ने दिया है उन सभी को हम परमेश्वर को पूरी तरह से समर्पित करके बलि कर सकें। Let us remember that the thing that I keep for myself, I will lose it from my life. और आप इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि जिन बातों को आप अपने वश में, अधिकार में रखना चाहते हैं, बचाए रखना चाहते हैं, आप उन्हें अंत में खो देंगे। The best way I can keep it for eternal life is to offer it to Jesus. लेकिन अनंत जीवन के लिए मैं उसे बचा कर रखने के लिए मैं एक ही कार्य कर सकता हूँ, उसे यीशु मसीह को सौंप दूं। It's my ambitions, it's my plans, it's everything in my life. Let us look to the Lord. God will give us grace to do that. और मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन की जो योजनाएं हैं, बातें हैं, उन सारी बातों को मैं मसीह के हाथों में सौंप दूं और हम प्रभु की ओर देखें। Thank God for what I heard. मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जो भी मैंने अभी सुना। The word especially which said that finally whatever we do, God looks at the final motive. और खासकर कि वह वचन जो हमने सुना कि जो भी हम काम करते हैं, परमेश्वर उसके उद्देश्य को देखता है। I was so happy to hear that that God is looking at our hearts. और मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं सुन रही थी कि परमेश्वर हमारे हृदयों को देखते हैं। Because God does not just look at what is we are doing on the outside. क्योंकि परमेश्वर केवल वह काम नहीं देखते जो हम बाहर से कर रहे हैं। He sees why we are doing it. और वह यह भी देखते हैं कि हम वैसा क्यों कर रहे हैं। If we give something, why are we doing it? Is it out of love? तो अगर हम कुछ चीज किसी को दे रहे हैं तो हम वह क्यों कर रहे हैं? क्या वह प्रेम के कारण है? It brought such joy to my heart that God is interested in cleansing us from all filthiness. और यह मेरे हृदय के लिए एक आनंद की बात है कि परमेश्वर का जो पूरा मकसद है वह हम लोगों को शुद्ध करना है। He doesn't want anything that is dirty or unclean in our lives. और वह ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहते हैं जो हमारे जीवन में जो गंदी है या जो अशुद्ध है। So God reminds us again and again through His Word that we need to check our motives. और परमेश्वर हमें बार-बार यह बात याद दिलाते हैं कि हमें हमारे जो लक्ष्य और उद्देश्य हैं उनको जांचना चाहिए। It's so good to be part of God's plan. और यह कितनी अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के उस योजना का हिस्सा बने। Where He is cleansing us. जहाँ वह हमें शुद्ध कर रहे हैं। He's removing everything that is not pleasing to Him. और वह उन सभी बातों को हटा रहे हैं जिनसे उनको आनंद नहीं मिलता है। He is doing this work in us. He's not giving up on us. और यह काम वे हमारे अंदर निरंतर कर रहे हैं और वे आशा नहीं छोड़ रहे हैं। We see that God is a God who interested in the motives
that we have when we do things. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारे लक्ष्य और उद्देश्यों में जिनकी उम्मीद रहती है. And through His word, He shows us a mirror. और उनके वचन के द्वारा वह हमें एक आईना दिखाते हैं where we can see ourselves as we are. और उस आईने में हम अपने आप को जैसे हम हैं वैसा हम देख पाते हैं. So thank God for His word. मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर के ऐसे वचन का. Proverbs 16:2 says, नीति वचन 16 का दूसरा वचन कहता है, all the ways of a man are clean in his own sight. मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, But the Lord weighs the motives. परंतु यहोवा मन को तौलता है. And I thank God that God, through His Spirit, can do this work in us. और मैं धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि वह उसकी आत्मा के द्वारा यह काम हमारे अंदर कर सकते हैं. Romans 5 रोमियो के 5वें अध्याय में and verse 5. उसका 5वां वचन बोलता है, And hope does not disappoint, और आशा से लज्जा नहीं होती, because the love of God has been poured out within our hearts क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है through the Holy Spirit who was given to us. पवित्र आत्मा के द्वारा. So through the Holy Spirit, I believe that God can, when we see that we don't have love in our hearts, but the Holy Spirit is willing to pour out His love into our hearts if we have that longing. तो अगर हमारे हृदयों में वह प्रेम नहीं है तो वो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपना प्रेम हमारे हृदयों में उंडेल सकते हैं. So I thank God for this hope that we have. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ यह आशा के लिए जो हमारे पास है. And the hope does not disappoint, it says. और जो आशा है वह उससे लज्जा नहीं होती, यहाँ पे लिखा है. Yeah, praise God for that. मैं परमेश्वर की स्तुति करती हूँ. We are talking about sacrifices and we are talking about love. What kind of sacrifice do we give towards the Lord? तो अभी हम बलिदानों के बारे में और प्रेम के बारे में सुन रहे थे. वो किस तरीके के जो बलिदान है हम परमेश्वर को दे सकते हैं. No bigger sacrifice than what Jesus did. No bigger sacrifice. जो यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान दिया उससे बड़ा और कोई बलिदान नहीं है. And there's no bigger love what Jesus showed upon the cross. और इससे बड़ा और कोई प्रेम नहीं है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर हमारे लिए दर्शाया. Sacrifice is mean denying yourself totally. और बलिदान का क्या मतलब है कि हम अपने आप का पूरी तरह से इनकार करते हैं. I won't go to scriptures, but I don't have so much time for it. और मैं अभी वचन पे नहीं जा पाऊंगा. So sacrifice is denying yourself totally. तो बलिदान का मतलब है कि हम अपने आप का पूरी तरह से इनकार करें. And love is carrying your cross. और जो प्रेम है उसका मतलब है कि हम अपने क्रूस को उठा के रहें. How do we deny ourselves? तो हम अपने आप का इनकार कैसे करते हैं? It is a question to all of us. तो यह प्रश्न हम सबके लिए है. We each and everyone should ask ourselves, how are we going to deny ourselves? तो हम में से हर एक को अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि हम खुद का इनकार कैसे कर सकते हैं. To show the love of God. परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए. Because I don't have authority to judge anyone. क्योंकि मेरे पास वह अधिकार नहीं कि मैं किसी और का न्याय करूं. How he behaves, how he talks, how he acts, how he reacts, what he thinks, what he has in his heart. I have no authority to judge anything on anybody. तो वह इंसान कैसे चाल चलन है उसका, क्या विचार है उसके, वह कैसे चलता है, क्या उसकी चाल है, इन सब के बारे में मेरे पास कुछ अधिकार नहीं कि मैं उसका न्याय करूं.
So if you want to deny yourself, if we want to deny ourselves, we need to remove all the uncleanliness that's inside us. तो अगर हम अपना स्वयं का इनकार करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर जो भी अशुद्ध चीजें हैं उन सबको निकालनी है, उससे साफ करना है खुद को, And plant the love of God inside us. और परमेश्वर का जो प्रेम है उसको अपने अंदर स्थापित करना है. And you will bear the fruit of God. तब आप जो परमेश्वर के जो फल है उसको आप अपने अंदर उसको आप लेकर रहेंगे. So the only thing is, brothers and sisters, I want to say is, और एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, reading scriptures, talking about scriptures is good. कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना और उसके बारे में बातें करना यह अच्छी बात है, But totally examining ourselves, लेकिन खुद को पूरी तरह से हमेशा जांचते रहना, are we really denying ourselves? क्या हम अपने आप का इनकार कर रहे हैं? Are we have that love of God inside us? तो क्या हम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर लेके रहते हैं? I have already and most often I've said this. If you have love, you have no enemies. तो यह बात मैं बहुत बार बोलता हूँ कि अगर हमारे अंदर प्रेम है तो हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है. Love is caring, sharing, helping, being patient, joy, peace, happiness with each other. तो जो प्रेम है वह है कि जो दूसरों की हम मदद करेंगे, उनका हम ध्यान रखेंगे, और हमारे अंदर वह आनंद हमेशा रहेगा. If you still have anger, if you still have bitterness, if you still have hatred, if your words are not good, if you still something and you're still judging people, if you're still gossiping, तो अगर आपके अंदर गुस्सा है या कड़वाहट है या हम दूसरों के बारे में गपशप करते हैं या उनको न्याय करते हैं, तब इसका मतलब है कि हमारे अंदर प्रेम नहीं है. we heard the theory of sacrifice and love by the word. तो अभी हमने एक बारे में हमने बलिदान के बारे में और प्रेम के बारे में वचन से पढ़ा. But we must be practical in the word of God. मगर यह बातें हमें अपने जीवन में व्यवहारिकता में लानी चाहिए. Amen. आमीन. A small testimony I would like to give. In these times where we are staying at home, everybody is at home, not able to go out. तो मैं एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि इन दिनों में जैसे हम लोग अपने घर में हैं और अपने घर में ही रहना पड़ रहा है और कोई बाहर नहीं जा सकता. How we can profitably use our time with the family and make full use of this time. That was what I was thinking. तो कैसे हम इस समय का अच्छी रीति से इस्तेमाल कर सकते हैं, और यह बात मैं सोच रहा था. Since I and Madhu both are working and we are working remotely or working from home. तो जैसे मैं और मेरी पत्नी हम दोनों ही घर से काम कर रहे हैं. And we have a 6-year-old son Ethan also at home. और हमारे पास एक 6 साल का बच्चा हमारे साथ घर में है. And now we have my parents also come over to stay with us. तो अभी हमारे जो माता पिता हैं वह भी हमारे साथ रहने के लिए आए हैं. For about 2 weeks or so they are staying with us. तो अभी लगभग 2 हफ्तों से वह हमारे साथ हैं. And before they came, it was so much work that was on top of our heads, doing the housework and doing the office work also. तो उनके आने से पहले कितना सारा काम हमारे पास होता था कि घर का काम भी होता था और ऑफिस का काम भी होता था. I'm sure you would have also faced that during this time. और मुझे विश्वास है कि आप सब भी इस दौर से गुजरे होंगे अभी. Because when you're at when no help is coming in the house, you have to do everything. तो क्योंकि अगर हमारे पास कोई भी बाहर से मदद नहीं आएगी तो हमें सारा काम खुद करना पड़ेगा. So though I was doing it, but I was asking the Lord, I'm not doing it joyfully. बट ये काम जब मैं कर रहा था, लेकिन मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि परमेश्वर ये सब काम मैं आनंद के साथ नहीं कर रहा हूँ. Because so much we have heard in the Bible, you have to be practical.
You have to do everything for the Lord, and the Lord is the one whom you're going to stand and whom you're accountable, and do everything before the Lord, and don't do anything grumbling manner or in disputing manner. But I see that I was not doing it wholeheartedly, joyfully. I was grumbling, and I was grumbling in my heart and everywhere. So that's what I was encouraged to also not to see my own that I'm not perfect. I see my own lacking. तो जैसे मैं ये सब काम कर रहा था तो मैं देख रहा था कि यह सारा काम मैं बहुत कुड़कुड़ाने के साथ कर रहा था और मेरे अंदर वह आनंद नहीं था। तो मैं मेरी खुद की जो कमी है उसको देख रहा था, क्योंकि हम वचन में पढ़ते हैं कि हमें हर काम बिना कुड़कुड़ाए करना चाहिए और आनंद से करना चाहिए। Oh Lord, there is so much that we need to rectify in our lives. We are not okay. तो मैं परमेश्वर को बोल रहा था कि परमेश्वर कितना कुछ है कि जो मुझे मेरे जीवन में ठीक करना चाहिए और मेरा जीवन अभी तक सिद्ध नहीं है। I need to realize this is the last final moments of my life on earth. Or Lord knows when we are going to come, when Lord is going to come. So I need to see that I'm ready to come with joy into His presence, not with a lot of baggage of weight of sin and grumbling and unkindful spirit and all that. तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर परमेश्वर इस समय पर आते हैं मुझे लेने के लिए, तो मुझे एक बोझ के साथ परमेश्वर के सामने नहीं जाना है, मुझे पूरे आनंद के साथ परमेश्वर के साथ जाना है। Other thing that since my parents were also here, so I started to do a Bible study together for some time. तो दूसरी बात यह है कि क्योंकि मेरे जो माता पिता हैं वह भी यहाँ पे थे, तो मैं उनके साथ वचन में कुछ समय बिताता था वचन के पढ़ने के लिए। And yeah, we are discovering how we can spend quality time with the family during this time. So why don't we get together in our homes and then do a Bible study and develop a bonding in the Word of God with our family. तो जैसे कि हम इस समय में हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम इस समय का अच्छा प्रयोग करके अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं और अपने परमेश्वर के साथ एक अच्छा समय बिता के परमेश्वर के वचन में और आगे बढ़ें। And give a freedom to those who want to do the Bible study. We are not forcing anybody. Those who are willingly doing it, willing to join, we can give that freedom to them. और उनको हम यह आज़ादी दें कि वह अगर हमारे साथ वचन का अध्ययन करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ जबरदस्ती उनको आने के लिए बोले। So yeah, thank God for the good work that He is doing in our lives. Amen. तो मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि वह जो भी अच्छे काम हमारे जीवन में कर रहे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज जो भाइयों ने शेयरिंग किया मेरे लिए बहुत ही एनकरेज था। So I want to thank the Lord. Whatever I have heard today from brothers, that was really encouraging for me. You know, मेरे को यही सीखने के लिए मिला जो हमने सुना वचन का शुरुआत जो रोमन्स 12 से शुरुआत किया। And what I had to learn was from as we started from Romans 12 verse 1. तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा शरीर के द्वारा जीवित और पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। So as it says there that what is pleasing to God, that we should offer our bodies as a living and pleasing sacrifice to our Lord. हाँ, तो परमेश्वर हम वहाँ पर ध्यान देंगे कि परमेश्वर चाहता नहीं कि बिग सैक्रिफाइस या परमेश्वर वहाँ पर नहीं बोल रहे कि लिखा है कि पवित्र होना चाहिए, ना कि बड़ा या बिग होना चाहिए लोगों को देखने के लिए। So what God is telling us there is that our sacrifices should not be very big, but they should be holy sacrifice, pure sacrifice. और एक बिग टेस्टमनी नहीं, बट स्मॉल टेस्टमनी, लेकिन परमेश्वर को एक्सेप्ट होना चाहिए।
So then our testimony should not be a very great or big, but it might be a very small, but it might be accepting to the Lord. तो जो हमने वर्शिप के बारे में सुना, जो परमेश्वर को आराधना करने का, And as we heard regarding worship and praising the Lord, मेरे मन में ये वचन है साम 73 उसका 25 में लिखा है, then a word came to my heart from Psalm 73 verse 25. मेरे हृदय में स्वर्ग में मेरा कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहूँ। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर में स्वर्ग में लो या पृथ्वी पर, मुझे आपके सिवा मुझे कोई नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप चाहिए। तो ये एक मैं इस तरह समझता हूँ कि एक ट्रू वर्शिप, ट्रू आराधना परमेश्वर के लिए ये है। So there we see, there it is written that whom I have in heaven but thee. So it should be like that in our lives, and that will be a true worship to our Lord. और मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इस स्थान पर मैं पहुंच गया, मैं परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु मुझे इस स्थान पे और भी मुझे आगे बढ़ा। And I'm not saying that I have already reached this place, but I'm praying to the Lord that Lord, you take me to this place. और आप जस्ट थोड़ा टाइम के लिए सोच कर देखिए, प्रभु में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, ना ही स्वर्ग में, परमेश्वर मुझे आप चाहिए। जस्ट मैं सोच रहा था इसके बारे में, तो इतना आनंद भरा जीवन है वो, कोई मुझे आदर करे या नहीं करे, कोई इज्जत दे या मत दे, कोई किसके साथ में भला क्या रहेगा, वो मुझे थैंक्स बोलेगा नहीं बोलेगा, कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर मुझे आप चाहिए। Just I want you to just realize this thing, and just imagine that you want nothing else in this world, and in heaven just the Lord, and then our lives will be so joyful, and that whether anyone praises us or insults us or whether respects us or not, it doesn't matters to us. और मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ। I really want to reach that place. और मैं सच में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु उस स्थान पर मुझे लेके चल। And I am praying to the Lord that Lord, you take me to that place. और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। Praise God. And I really want to thank the Lord for this word and praise Him.